who can recall what is right of subrogation? Right of subrogation. We had discussed in our last lecture what is right of subrogation. So right of subrogation is when the principal debtor makes default in repayment of loan, and when surety repays the loan on behalf of principal debtor to the creditor, then he becomes the creditor in that particular case, and creditor is now out of the contract of guarantee. So he can now file a case against principal debtor and recover his compensation from the court of law from principal debtor. So that is called as right of subrogation. Right to claim indemnity. Indemnity is, we had discussed in contract of indemnity that when the promisor gives an undertaking to the promisee that in case of any loss, he shall be compensating the promisee. Same is the case here also. Before signing the contract of guarantee, if the principal debtor assures the surety, assures the guarantor that in case of any loss to you because of my conduct, because of my action, I shall repay you the compensation, or I shall compensate you for those acts against the loss which you have faced. So that is right to claim indemnity. For example, now Mr. A wants to avail loan from C, who is a creditor. Now Mr. A approaches B and requests him to be his surety, to be his guarantor. Now, in case if Mr. B is reluctant to sign the contract of guarantee at that particular moment, if Mr. A, who will be taking the loan from the creditor, assures him that, or gives him in writing in a form of undertaking, that in case if you have any loss in the future because of my action or conduct, I will compensate you with that loss. So that is called as right to claim indemnity. Next one, right to be relieved of liability. Liability here is responsibility. अब कब मुक्त होता है श्योरिटी? श्योरिटी एक ही सूरत में मुक्त होगा जब सबसे इजीएस्ट वे ऑफ being of relieving of surety from liability is when principal debtor repays the loan to the creditor, automatically the surety is relieved of his liability. तो easiest way लाइबिलिटी से मुक्त होने का या जिम्मेदारी से मुक्त होने का श्योरिटी के लिए या गारंटर के लिए क्या है कि जब प्रिंसिपल डेटर जिसने की लोन लिया था क्रेडिटर से, वो सारा लोन रिटर्न कर देता है और क्रेडिटर वो सब एक्सेप्ट कर लेता है, एट दैट मोमेंट वी कैन से दैट श्योरिटी इज नाउ relieved of his liability. Now, right of surety against the creditor. So first we had discussed right of surety against the principal debtor. Now we will be discussing what are the rights of surety against the creditor. So first right of surety against the creditor is right to benefit of creditor's security. Anyone who will help me in explaining this? Yes, it is very simple. You can unmute yourself if you want to add anything in this. We are talking about rights of surety against the creditor. First one is right to benefit of creditor's security. Creditor's security is what here?
So at the time of sanctioning the loan, if the creditor has taken any security from the principal debtor, जैसे हम लोग अगर बैंक में भी लोन लेने के लिए जाते हैं तो कई बार बैंक मॉर्गेज मांगता है कि अगर आपके पास फ्लैट है तो उसके कागज रखो, प्लॉट है तो उसके कागज रखो, या गोल्ड ऑर्नामेंट्स है तो वो आपको मॉर्गेज करना पड़ता है, तब जाके आपको लोन सैंक्शन होता है। ऐसे काफी सारे केसेस में होता है। अब सपोज मिस्टर ए हैज टेकन लोन फ्रॉम मिस्टर सी, मिस्टर ए इज डेटर, मिस्टर सी इज क्रेडिटर एंड बी इज गारंटर। अब जब क्रेडिटर लोन मिस्टर ए को यानी डेटर को दे रहा था तो क्रेडिटर की एक कंडीशन थी कि मैं आपको 1 लाख रुपए का लोन दूंगा, पर बदले में आपको आपका 1 तोला सोना तो भी मेरे पास गिरवी रखना पड़ेगा। तो मिस्टर ए 1 तोला सोना रखते हैं मिस्टर सी के पास, मतलब क्रेडिटर के पास, और तब उन्हें वो पैसा 1 लाख रुपए क्रेडिटर के द्वारा लोन के रूप में मिलता है। अब अगर मिस्टर ए जो डेटर है वो रीपे नहीं कर पाए और मिस्टर बी जो श्योरिटी है, गारंटर है, उसने वो 1 लाख रुपए रीपे कर दिए, तो अब क्या राइट है मिस्टर श्योरिटी को कि जो 1 तोला सोना क्रेडिटर ने अपने पास सिक्योरिटी के तौर पे रखा है वो ऑटोमेटिकली किसके पास शिफ्ट हो जाएगा? वो मिस्टर बी गारंटर के पास, श्योरिटी के पास शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज श्योरिटी हैज ऑलरेडी क्लियर्ड द लोन of Mr. A or debtor. So creditor has to hand over the complete security which is kept by the principal debtor for sanctioning of loan in the account of surety. So that is called as right to benefit of creditor's security. Now next one, right to claim set off if any. अब इसी एग्जाम्पल को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ए डेटर है, सी क्रेडिटर है और बी श्योरिटी है। डेटर मतलब ए ने 1 लाख रुपए का लोन लिया क्रेडिटर से। अब 1 साल में ये पूरा लोन वापस करना है, 1 लाख रुपया। 50,000 का लोन डेटर क्रेडिटर को रिटर्न कर देता 8 महीने में। अब बचा है 50,000 का लोन। अब अगले 4 महीने में वो रिटर्न नहीं कर पाता और डिफॉल्ट हो जाता है। अब बाकी के जो 50,000 है वो भरना रह जाता है। अब अगर गारंटर ने कितना की गारंटी दी है? 1 लाख रुपए लोन की गारंटी। अब अगर क्रेडिटर गारंटर के पास जाता है या श्योरिटी के पास जाता है कि नाउ principal debtor has made a default in repayment of loan, and as you had guarantee his transaction, now it is your responsibility to repay the loan. और अगर गारंटर पूरा 1 लाख रुपए का लोन विथ इंटरेस्ट क्रेडिटर को रिटर्न कर देता है, गारंटर इज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 50,000 from 1 lakh is already repaid by the debtor. अगर गारंटर को ये नहीं पता है तो भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहां पर क्रेडिटर की कि गारंटर को ये बात बताए कि 50,000 ऑलरेडी पेड हो चुके हैं, आपको सिर्फ 50,000 करने हैं। और अगर ये नहीं बताता है तो एक राइट है श्योरिटी का कि ही कैन क्लेम सेट ऑफ इफ एनी। If he has not shared the information, guarantor or surety has the right that he can take the creditor to the court of law and he can immediately recover 50,000 from him, as the debtor has already paid some amount from the loan, right? So that is called as right to claim set off if any. जितना भी, अगर उसने 10,000 भरा है तो अब श्योरिटी को कितना भरना है? सिर्फ 90,000। अगर उसने 90,000 भर दिया है, सिर्फ 10,000 का डिफॉल्ट है, तो क्रेडिटर
श्योरिटी से पूरा 1 लाख रुपया नहीं मांग सकता। सेट ऑफ कितना है? 10,000, तो 10,000 ही उसको भरना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज राइट टू क्लेम सेट ऑफ इफेक्ट. Now, right of exoneration. Now, the meaning of exoneration is when someone is absolved from a, say, crime or from any action. So that is called as exoneration. Now, in Marathi, if we call it, the meaning of exoneration is निर्दोष किंवा निर्दोषी ठरवणे. That is exoneration. When someone is declared innocent, that is the person has been exonerated, right, of a particular thing. So that is called as exoneration. Now exoneration takes place, for example, अब किसी एग्जाम्पल को वी विल कंटिन्यू. जैसे ए डेटर है, बी श्योरिटी है और सी क्रेडिटर. अब ए ने अगर क्रेडिट पे लोन लिया है, वो डेटर है, तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी रीपे करने की? डेटर की. अगर डेटर नहीं रीपे करता है लोन, तो क्रेडिटर हैज टू अप्रोच or send a notice to the principal debtor that as per the contract of guarantee, he is supposed to repay the loan to the creditor. If the principal debtor is unable to repay the loan, then only he can approach the surety. Otherwise, directly he cannot take the surety to the court of law without notifying the debtor of default of repayment of loan. अब राइट ऑफ एक्सोनरेशन में क्या होता है कि अगर जैसे ही श्योरिटी को पता चलता है कि जो प्रिंसिपल डेटर है उसने लोन भरना बंद कर दिया है, वो लोन नहीं भर रहा है, अब इस समय बिना रुके हुए अगर श्योरिटी immediately this thing brings to the notice of creditor that although principal debtor is not repaying the loan, but I am aware of the fact that he is financially sound and he is having some property in his name, ancestral property or family property or his own property. So what he is doing is he is bringing it to the notice of creditor. He is helping the creditor कि अगर आपका लोन डेटर वापस नहीं कर रहा है तो मैं आपको बताता हूं कि उसके पास ये प्रॉपर्टी है, तो अब आगे का एक्शन आप ले सकते हैं. इसका मतलब क्या हो रहा है? He is exonerating himself from this contract of guarantee. यहां पर कौन एब्सॉल्व हो रहा है? श्योरिटी, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है. अगर आपका पैसा डेटर नहीं भर रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं कि उसके पास प्रॉपर्टी है, ये उसके डिटेल्स हैं. अगर नहीं भर रहा है तो यू कैन auction his property, you can sell his property, and you can recover your loan instead of taking me to the court of law. So this is called as right of exoneration. Next one, right of subrogation, that we have already discussed. Next one, right of surety against co-surety. अब ये इसमें क्या है कि श्योरिटी का अधिकार किसके अगेंस्ट? Co-surety के against. Co-sureties we have already discussed. When we are talking about surety, it is assumed that one person has taken the guarantee of the debtor. When we are talking about co-sureties, we assume that instead of one person taking the guarantee of principal debtor, more people are guaranteeing
the transaction of principal debtor to the creditor, right? तो जब 3 लोग मिलके या 2 लोग मिलके या 4 लोग मिलके प्रिंसिपल डेटर के लिए गारंटर बन रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे उनको? दे विल बी कॉल्ड एज नॉट श्योरिटी बट दे विल बी कॉल्ड एज को श्योरिटीज। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी कितनी होगी, दैट इज टू बी डिफाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। नाउ सपोज सेम एग्जांपल, अब ए जो डेटर है वो 1 लाख लोन के लिए अप्लाई करता है सी के पास, क्रेडिटर के पास। क्रेडिटर एक कंडीशन रखता है कि अगर गारंटर होगा तो ही मैं आपको लोन सैंक्शन करूंगा। अब मिस्टर ए डी ई को अप्रोच करते हैं, 2 लोग हैं, एक मिस्टर डी है एक मिस्टर ई है, और दोनों भी तैयार हो जाते हैं गारंटी देने के लिए। किसके लिए? मिस्टर ए जो डेटर है। अब यहां पर हम लोग अज्यूम करेंगे कि इन दोनों ने कितनी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, 50% प्लस 50%। मतलब कि अगर डेटर वो लोन रीपे नहीं करता है तो दोनों मिलके वो लोन रीपे करेंगे। मिस्टर डी विल रीपे 50,000 of amount, whereas Mr. E will also repay the remaining 50,000 to the creditor. So that is called as co-surety. कभी कभी यहां पे परसेंटेज अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में फिक्स है तो उस परसेंटेज के हिसाब से लायबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स हो। अब सपोज मिस्टर डी यहां पर बोलते हैं कि मैं 60% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूं। मतलब क्या? 1 लाख रुपए का अगर लोन है, अगर वो डिफॉल्ट होता है तो मिस्टर डी कितना भरेंगे क्रेडिटर को? 60,000। 40% की लायबिलिटी किसने ली है? मिस्टर ई ने। तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना है डिफॉल्ट होने पे? 40,000। उनसे यहां पर हम 50,000 नहीं मांग सकते। तो दैट इज कॉल्ड एज राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट को श्योरिटी। अब हम लोग थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, कब ये राइट कन्वर्ट हो जाता है को श्योरिटी के अगेंस्ट एक श्योरिटी के द्वारा। अब यहां पर जैसे हम लोगों ने बोला कि परसेंटेज फिक्स थी, ए का कितना परसेंटेज है? 60% लायबिलिटी ए के पास है और 40% लायबिलिटी है, सॉरी 60% लायबिलिटी है मिस्टर डी के पास जो श्योरिटी है, और दूसरा श्योरिटी है मिस्टर ई जिसके पास लायबिलिटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रीपेमेंट करने की, कितना? 40%। मतलब एक जो मिस्टर डी है, अगर मिस्टर ए यानी डेटर अगर रीपे नहीं करते हैं लोन तो डी कितना भरेगा? 60,000। ई कितना भरेगा? 40,000। अब मिस्टर ए जो डेटर है वो डिफॉल्ट कर देते, वो लोन नहीं भरते। अब जब लोन भरने की बारी श्योरिटी की आती है तो मिस्टर ई रिक्वेस्ट मिस्टर डी कि अभी मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो मैं अभी लोन नहीं उसका चुका सकता डेटर का। एक आप काम कीजिए कि मेरा जो 40% है, मतलब मैंने जो 40,000 की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी वो भी अभी आप भर दीजिए, कुछ समय बाद मैं आपको 40,000 रुपए रिटर्न कर। तो यहां पर क्या हुआ? जो डी श्योरिटी है उसको एक राइट मिला है अगेंस्ट ई श्योरिटी कि अगर कुछ समय बाद, जो भी समय प्रॉमिस हुआ है उस समय तक अगर ई 40,000 रुपए किसको रिटर्न नहीं करते हैं? श्योरिटी को, तो श्योरिटी विल हैव अ राइट टू टेक मिस्टर ई टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड देन कोर्ट विल डायरेक्ट द co-surety Mr. E to compensate with 40,000 plus interest plus whatever amount the court will think fit. All that compensation has to be given to Mr. D, who is the surety. So that is the right of surety against co-sureties. Now, co-sureties, rights and liabilities, these are very simple. We have already discussed some of that. So we will quickly go through it. Number one, co-sureties are liable to contribute equally.
जैसा हमने पहला एग्जाम्पल देखा कि अगर एक से अधिक अगर श्योरिटी किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में इन्वॉल्व है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी कितनी है। अगर स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में इट इज नॉट मेंशन दैट हाउ मच रिस्पॉन्सिबिलिटी will taken by 2 or 3 guarantors who have signed in the contract of guarantee. At that particular moment, it will be equal responsibility or equal liability, right? तो 3 लोग हैं तो 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी तीनों की अगर लिखा नहीं है परसेंटेज तो सेम रहेगी। अगर परसेंटेज लिखा है तो फिर वो सेकंड पॉइंट में आएगा। Liability, second point is liability of co-surety when they are bound to pay different amounts. अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 श्योरिटीज ने डेटर के एक्शन के अगेंस्ट साइन किया है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग है, जैसे मिस्टर ए अगर एक श्योरिटी है, मिस्टर बी दूसरा श्योरिटी और मिस्टर सी तीसरा श्योरिटी, तो मिस्टर ए ने 40% की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और मिस्टर बी ने 30% की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मिस्टर सी ने 30% की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहां पर पॉइंट नंबर 2 क्या है? लाइबिलिटी ऑफ को-श्योरिटीज व्हेन दे आर बाउंड टू पे डिफरेंट अमाउंट्स। तो यहां पर तीनों का इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यहां पर क्या है कि तीनों का अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जितनी लाइबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीनों श्योरिटीज के अंदर डिवाइड हुई है उतना ही अमाउंट उन्हें पे करना पड़ेगा, राइट? नेक्स्ट वन, लाइबिलिटी ऑफ को-श्योरिटीज ऑन रिलीज ऑफ वन ऑफ देम। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। लाइबिलिटी ऑफ को-श्योरिटीज ऑन द रिलीज ऑफ वन ऑफ, मतलब रिलीज मतलब छोड़ देना, मुक्त करना। किसको मुक्त कर रहे हैं यहां पर? अब अगर हम लोग इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे कि ए बी सी 3 श्योरिटीज हैं, 3 गारंटर्स हैं जो डेटर के लिए गारंटी साइन कर रहे हैं। अब तीनों ने साइन किया है। अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों मिलके मिस्टर सी को बोलते हैं ठीक है आपको नहीं पे करना है तो मत कीजिए, आपको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करेंगे। इसका क्या मतलब है कि जो 30% का शेयर मिस्टर सी का था, जो लायबिलिटी मिस्टर सी ने उठाई थी, अब वो क्या होगी? 15% से मिस्टर ए और मिस्टर बी में बढ़ जाएगी। सो दैट इज कॉल्ड एज liability of co-sureties on release of one of them, because here it will be considered that 2 of the sureties have unanimously or in consensus they have agreed that they will release Mr. C from his liability of being surety in the contract of guarantee. तो यहां पर अब क्या अज्यूम किया जाएगा कि सिर्फ 2 ही गारंटर है। कौन है गारंटर अभी? मिस्टर ए और मिस्टर बी, राइट? नेक्स्ट वन, लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी व्हेन अदर श्योरिटी डज नॉट ज्वाइन। अब यहां पर अगर जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि ए, या फिर हम लोग बोलेंगे कि डेटर को लोन लेना है और वो क्रेडिटर के पास जाता है। क्रेडिटर डेटर को बोलता है कि मैं लोन सैंक्शन करूंगा पर मुझे श्योरिटी चाहिए। अब डेटर श्योरिटी ढूंढने के लिए जाता है और श्योरिटी को बोलता है, उसे श्योरिटी मिल जाता है, उसे श्योरिटी को बोलता है कि आप प्लीज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पे साइन कीजिए, अगर आप साइन करेंगे तो मुझे लोन 1 लाख रुपए का मिल जाएगा और मैं आपको अश्योर करता हूं कि आई विल रीपे द कंप्लीट लोन विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। अब बिफोर डायरेक्टली साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी tells the debtor that I am ready to sign, but if one more surety can sign the contract of guarantee. तो श्योरिटी क्या बोल रहा है कि मैं तैयार हूं साइन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पे, पर मेरा एक कंडीशन है कि अगर आप
मतलब डेटर एक और श्योरिटी लेकर आए जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पे साइन करे। अब यहां पर श्योरिटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटी है। श्योरिटी ने पहले ही कंडीशन रख दी है कि मैं साइन तभी करूंगा जब एक और श्योरिटी साइन करेगा। अगर श्योरिटी साइन नहीं करता है दूसरा, तो पहले श्योरिटी का लायबिलिटी अपने आप एब्सॉल्व हो जाएगी, राइट। वो क्योंकि उसका क्या कंडीशन था, मैं साइन तभी करूंगा जब दूसरा ज्वाइन करेगा। दूसरा अगर ज्वाइन करने से मना कर देता है तो पहले वाला श्योरिटी साइन करेगा ही नहीं। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पे सिग्नेचर नहीं हुए तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होगा ही नहीं। तो वो अपने आप उसकी लायबिलिटी एब्सॉल्व हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लास्ट वन, liability of two persons primarily liable when some arrangement is made between them. अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज, liability of two persons primarily liable when some arrangement is made between them. जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं कि श्योरिटी को श्योरिटीज है, मतलब दो श्योरिटी हो सकते हैं या दो से अधिक श्योरिटी हो सकते हैं। अगर हम लोग ये लेके चलते हैं कि दो श्योरिटी, एक मिस्टर ए है एक मिस्टर बी, अगर इन दोनों में भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, क्या मेंशन किया गया है कि अगर डेटर डिफॉल्ट करता है तो सबसे पहला केस मिस्टर ए के ऊपर होगा। अगर मिस्टर ए रीपे नहीं कर पाते हैं तो ही क्रेडिटर मिस्टर बी यानी दूसरे श्योरिटी के ऊपर केस कर सकता है। तो दैट इज कॉल्ड एज liability of two persons primarily liable when some arrangement is made between them. Now next one, discharge of surety from his liability. तो surety कब डिस्चार्ज हो जाता है अपनी लायबिलिटी से, कब उसकी लायबिलिटी खत्म होती है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग नाउ। फर्स्ट वन, discharge of surety by revocation. Revocation we had already discussed. The meaning of revocation is cancellation. So cancellation हो जा discharge of surety by cancellation. जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कैंसिल हो जाता है तो अपने आप श्योरिटी की लायबिलिटी डिसॉल्व हो जाती है। तो डिस्चार्ज कई तरीके से हो सकता है, किस किस तरीके से हो सकता है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग। फर्स्ट वन, रिवोकेशन बाय गिविंग नोटिस बाय द श्योरिटी। जब श्योरिटी क्रेडिटर को नोटिस देता है कि henceforth I do not want to be surety in this contract, from that day he is discharged from his liability of being a surety. Now this can be given only when the contract is related to continuing guarantee, right? जब हम लोग टाइप्स ऑफ गारंटी देख रहे थे तो वहां पर एक टाइप था continuing guarantee. Continuing guarantee we had discussed that when the guarantee is given by the guarantor or surety for a number of transactions over a period of time, that is called as contract of guarantee, continuing guarantee. So we are discussing revocation by giving the notice by surety. तो कैंसलेशन का नोटिस श्योरिटी क्रेडिटर को दे सकता है कि इसके आगे के ट्रांजैक्शन के लिए मैं डेटर का श्योरिटी नहीं हूं, मैं डेटर का श्योरिटी नहीं। तो इसके आगे जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, 1 2 3 4 5 जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसके लिए वो लायबल नहीं है। सो दैट इज डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी। तो ये सिर्फ कब एप्लीकेबल है, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किसका है, कंटिन्यूइंग गारंटी। जब स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी दी जाती है, मतलब डेटर ने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया, श्योरिटी ने गारंटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पे साइन किया, एक ही ट्रांजैक्शन हुआ मतलब स्पेसिफिक,
और उसी ट्रांजैक्शन के लिए श्योरिटी ने गारंटी ली है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है 1 साल का, 1 साल में डेटर को पूरा 1 लाख रुपया विथ इंटरेस्ट क्रेडिटर को रिटर्न कर। 11 महीने के बाद जब डेटर पूरा पैसा रिटर्न करने की स्थिति में नहीं है और वो नहीं कर पाता है, और जैसे ही ये श्योरिटी को पता चलता है, श्योरिटी इमीडिएटली एक लेटर लिखता है क्रेडिटर को कि अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में श्योरिटी नहीं हूं, सो आई एम नॉट लायबल। तो ये जो लेटर रहेगा, ये लेटर क्या है? इनवैलिड टाइप ऑफ लेटर। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक गारंटी के लिए he is not discharged from his liability even if he writes a notice and send it to the creditor before the completion of the contract of guarantee. Why? Because he has given his surety, his guarantee for a transaction only, for a specific transaction. 1 लाख रुपए का लोन क्रेडिटर ने क्यों दिया? क्योंकि श्योरिटी ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पे साइन किया। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से श्योरिटी नहीं बच सकता। श्योरिटी सिर्फ एक ही कंडीशन में, सिर्फ एक ही टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में बच सकता है, और वो गारंटी कैसे होनी चाहिए? कंटिन्यूइंग गारंटी। और वो भी कब बच सकता है? वो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए ही इज रिलीव्ड फ्रॉम हिज लायबिलिटी, ही इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी, बट फॉर पास्ट ट्रांजैक्शन ही इज नॉट रिलीव्ड और डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। जैसे दूसरा एग्जांपल कि कंटिन्यूइंग गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है, श्योरिटी ने क्रेडिटर को बोला कि डेटर अगर आपसे कुछ भी उधार माल लेता है 6 महीने तक, 10 लाख का माल अगर वो लेता है आपसे, तो मैं उसका श्योरिटी बनने के लिए तैयार हूं, और ये साइन हो जाता है। अब एक ट्रांजैक्शन हो गया 2 लाख रुपए का, दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ 1 लाख रुपए का। अब श्योरिटी इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना, और इमीडिएटली वो नोटिस भेजता है क्रेडिटर को कि ही डू नॉट वांट टू कंटिन्यू दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, he wants to cancel this contract of guarantee. तो जो 3 लाख का ट्रांजैक्शन अभी तक हो गया है, वो तो उसकी लायबिलिटी प्रेजेंट रहेगी, एज इट इज रहने ही वाली है। किसकी? श्योरिटी। पर आगे के जो फ्यूचर में ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं 7 लाख रुपीस के, वो लायबिलिटी उसकी डिस्चार्ज हो जाएगी। सो दैट इज कॉल्ड एज रिवोकेशन by giving notice by the surety. Now next one, death of surety. अब डेथ ऑफ श्योरिटी में यहां पर वो गारंटर जो है उसका रोल खत्म हो जाता है। अगर उसकी मौत हो गई तो वो खत्म हो जाता है। अब अगर सपोज डेटर के लिए गारंटर ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि डेटर को 1 लाख रुपया क्रेडिटर दे सकता है, अगर डेटर नहीं भर पाया तो श्योरिटी गारंटी लेता है कि मैं भर दूंगा, पर कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले ही श्योरिटी की डेथ हो गई। अब श्योरिटी बहुत पैसे वाला है, तो क्या ये लायबिलिटी उसके लीगल हायर्स को, मतलब उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगी? तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ये नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जैसे ही श्योरिटी की मौत हो गई, उसकी डेथ हो गई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वहीं पर खत्म हो जाता है। जैसे हम लोगों ने पहले देखा था कि अगर सपोज लोन लिया है और डेटर की अगर डेथ हो जाती है, तो वहां पर केस खत्म नहीं होता, वहां पर उसका लायबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर हो जाती है उसके लीगल हायर्स। बट दिस इज नॉट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में श्योरिटी की मौत मतलब कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर, he is discharged from his liability. तो we can just now you can think कि कितना मुश्किल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में श्योरिटी का बचना। उसके लिए इतने सारे
मतलब हर जगह से वो फंसा हुआ है। अगर डेटर पैसे नहीं भरता है तो श्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारे पैसे भरने की। अगर वो भर देता है, क्रेडिटर वहां से मुक्त हो जाता है, फिर उसको केस करना है डेटर के ऊपर और फिर उससे वो पैसा लेना है। अगर क्रेडिटर ने कुछ मॉर्गेज किया था पर वो उसने श्योरिटी को बताया नहीं, श्योरिटी ने सारा उसको रिटर्न कर दिया क्रेडिटर को, बाद में अगर श्योरिटी को पता चलता है तो फिर श्योरिटी को केस करना पड़ेगा क्रेडिटर के पास ऊपर, और कोर्ट से वो सारा मॉर्गेज किया हुआ चीजें लेनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर वी कैन अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट लाइफ ऑफ श्योरिटी इज इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, एंड द easiest way to discharge his or her liability in contract of guarantee is death of surety. श्योरिटी की मौत मतलब श्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर ही खत्म हो जाता है, राइट। नेक्स्ट वन, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय द कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। नाउ अंडर दिस, by making variation in the terms of contract, by releasing the principal debtor, by compounding by the creditor with principal debtor, by an act of creditor and by loss of security। तो ये सारे कंडीशन है जो कि किसके अंडर आते हैं? डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय द कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर वी ऑल नो by now that he is the person who is giving loan to the debtor। तो क्रेडिटर के अगर ये कुछ कंडक्ट क्रेडिटर करता है, ये कुछ एक्शंस अगर क्रेडिटर लेता है, तो श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम हिज लायबिलिटी। अब पहला, by making variation in the terms of contract without the knowledge of surety, if creditor makes any changes in the contract of guarantee without the knowledge of the surety, then the surety is discharge of his liability in the contract of guarantee। जैसे कि अब डेटर ने लोन लिया, क्रेडिटर ने लोन दिया। अब क्रेडिटर लोन दे रहा है, इसीलिए ओरिजिनल एग्रीमेंट की कॉपी किसकी पोजीशन में रहेगी? ना गारंटर की पोजीशन में रहेगी, ना डेटर की पोजीशन में रहेगी, वो हमेशा पोजीशन में रहेगी क्रेडिटर की। कब तक? जब तक कि पूरा अमाउंट रीपे नहीं हो जाता और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी खत्म। अब उसके पास ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी थी, उसने अगर टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ चेंज किया बिना श्योरिटी को बताए, और ये अगर प्रूव हो गया बाद में, द मोमेंट इट इज प्रूव्ड, immediately the surety is discharged from his liability against the debtor, because the court will assume that without taking the prior permission of the surety, these changes have been made intentionally by the creditor in the contract of guarantee, right? First one. Second one, by releasing the principal debtor. So far we are discussing that primary responsibility for repayment of loan is always of debtor। डेटर ने लोन लिया है तो सबसे पहली जिम्मेदारी रीपे करने की किसकी है? डेटर की। अब डेटर डिफॉल्ट करता है विदाउट सेंडिंग अ नोटिस टू द डेटर फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन, if the creditor releases the debtor, okay, you are unable to repay the loan, no problem, I will not file a case against you, Mr. Debtor, but I will definitely follow the I will definitely file a case against the surety। अगर क्रेडिटर ऐसा बोलता है तो surety is immediately discharged from his liability, because in principle it is assumed that debtor is the first person
who is primarily responsible, primarily liable to repay the loan. Secondary responsibility, of course, is with the surety. So before approaching the debtor or the creditor releases the principal debtor from his responsibility of repayment of loan, then the surety is discharged from his liability. Next one, compounding by the creditor with principal debtor. This we had already discussed कि अगर क्रेडिटर और डेटर के बीच में एक सीक्रेट एग्रीमेंट होता है या बातचीत होती है कि ठीक है, डेटर क्रेडिटर डेटर को अप्रोच करता है कि कोई बात नहीं, जो श्योरिटी है उसके पास बहुत पैसा है, आप मुझे 1 लाख की जगह, ऐसा क्रेडिटर डेटर को कह रहा है। क्रेडिटर क्या कह रहा है कि डेटर तू मुझे 10,000 रुपए दे, 1 लाख रुपए पूरा पे करने की जरूरत नहीं है, और बाकी का जितना भी, और मैं क्या करूंगा, पूरा अमाउंट मैं श्योरिटी को बोलूंगा कि डेटर को फाइनेंशियली बहुत लॉस हुआ है, वो अब पैसा नहीं भर सकता है, तो अब पूरा पैसा आपको भरना पड़ेगा, मतलब श्योरिटी को भरना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई भी कंपाउंडिंग होती है, ऐसी कोई भी कोलैबोरेशन होती है, ऐसी कोई भी सांठगांठ होती है, किसके बीच, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, तो जैसे ही इस सांठगांठ का किसे पता चलता है, श्योरिटी को, और श्योरिटी के पास अगर इसका कोई एविडेंस आ जाता है तो इमीडिएटली ही इज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम हिज लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी। नेक्स्ट इज बाय एन एक्ट ऑफ क्रेडिटर। बहुत सिंपल है, अगर क्रेडिटर खुद से श्योरिटी को डिस्चार्ज करना चाहे तो वो कर सकता है कि मैंने लोन डेटर को दिया है, मैं डेटर से ही वसूल करूंगा ये लोन, मुझे आपके ऊपर केस नहीं करना है, मुझे आपको कोर्ट में लेके नहीं जाना है, तो दैट इज कॉल्ड एज डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी बाय एक्ट ऑफ क्रेडिटर। नेक्स्ट वन, बाय लॉस ऑफ सिक्योरिटी। Loss of security, तो security we had already discussed, only thing is word here used is loss. अगर सोना गिरवी रखा गया और सोने के बदले में क्रेडिटर ने डेटर को क्या दिया था, लोन दिया था, अगर जो सिक्योरिटी है, मतलब जो सोना है, वो खो जाता है, चोरी हो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है, गुम जाता है, तो श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम हिज लायबिलिटी। क्योंकि श्योरिटी का क्या राइट है कि अगर वो रीपे करता है लोन, किसका, डेटर का, तो जितनी भी सिक्योरिटी डेटर ने क्रेडिटर के पास जमा की है, वो सारी सिक्योरिटी किसे मिलनी चाहिए, श्योरिटी को। अब इस केस में क्या हुआ कि जो सिक्योरिटी जमा की गई थी वो सिक्योरिटी ही नहीं है। अब क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है, इसीलिए यहां पर उसकी लायबिलिटी इमीडिएटली खत्म हो जाती, किसकी, श्योरिटी। नाउ नेक्स्ट वन, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिड हो जाता है तो अपने आप ही श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगी। अब तीन कंडीशंस यहां पे दी गई हैं कैसे डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैपेंस। फर्स्ट वन, guarantee obtained by either misrepresentation or concealment. When we were talking about the essential elements of contract of guarantee, essential elements of a valid contract, we had discussed that one of the major essential element is called as that the contract should be
free from coercion, it should be free from misrepresentation, it should be free from undue influence, it should be free from mistake, and it should be free from fraud. अगर ऐसी कोई भी चीज इन्वॉल्व है तो अपने आप ही वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, कोर्ट में वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं होता. And when we were discussing about essential elements of a valid contract of guarantee, we had discussed that first essential element in contract of guarantee is that all the essential elements of a valid contract should be present in contract of guarantee. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है कि जितने भी इसेंशियल एलिमेंट्स हैं किसके, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, किसके, कॉन्ट्रैक्ट के, वो सारे इसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए. तो मिस रिप्रेजेंटेशन अगर होता है और ये प्रूव अगर श्योरिटी कर देता है तो श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी. नेक्स्ट वन, फेलियर ऑफ ज्वाइनिंग एनी पर्सन एज को श्योरिटी. दिस वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जब डेटर श्योरिटी के पास जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पे साइन कीजिए, तो श्योरिटी ये कहता है कि मैं साइन करने के लिए तैयार हूं, पर मेरी एक कंडीशन ये है कि आपको एक और व्यक्ति को, एक और पार्टी को लाना पड़ेगा जो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी साइन करेगा. अगर वो दूसरा व्यक्ति साइन करता है तो ही मैं साइन करूंगा. अब यहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि फेलियर ऑफ ज्वाइनिंग एनी पर्सन एज अ को-श्योरिटी, जब वो व्यक्ति वो साइन नहीं करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जो पहला व्यक्ति जो बोल रहा था मैं साइन करने के लिए तैयार हूं, उसकी लायबिलिटी अपने आप डिस्चार्ज हो जाती, खत्म हो जाती है. नेक्स्ट वन, फेलियर ऑफ कंसिडरेशन. Consideration we had already discussed. Consideration is getting something in return. तो अगर कंसिडरेशन नहीं है, अब गारंटी किसकी दी जा रही है, लोन के लिए, राइट. अब ए को क्या मिलेगा, मतलब डेटर को क्या मिलेगा, 1,00,000 रुपए का लोन. क्रेडिटर को क्या मिलेगा, 1,00,000 रुपए रिटर्न मिलेंगे प्लस इंटरेस्ट मिलेगा. मतलब कंसिडरेशन, both the parties are getting something in return, and for this something in return the surety is taking guarantee. अब ये जो something in return है, अगर ये consideration ही missing रहा, ये consideration नहीं रहा, ये लोन ही नहीं रहा, तो अपने आप discharge, there is discharge of surety from his liability, right? So these are some of the points under contract of guarantee. So now 5-6 minutes are remaining. In case you have any query, you can unmute yourself, or else we can start with our next part. So this is second part of our unit 1. First part we discussed was about Contract Act. Second part we discussed was about contract of indemnity and contract of guarantee. And the third part of our unit 1 of legal aspects of business we will be discussing is about contract of agency. Yes, if you have any query, you can ask me, or else we will start with contract of agency, because still we are having 6 minutes. बोलिए, किसी को कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए. Yes. I hope that I am audible to everyone. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, दूसरी तरफ से कुछ आवाज ही नहीं आ रही है तो इसीलिए पूछना पड़ता है, कहीं मेरा चला No, तो sir, नहीं we गया are वॉइस. listening. ओके ओके, हाँ, कुछ भी अभी तक डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए. मेरा स्क्रीन बंद हो गया तो आई नीड टू अगेन स्टार्ट माय स्क्रीन.
yes, if you are unable to understand anything, please you can ask me. By the time I am sharing my screen, आप पूछ सकते हैं कुछ भी अगर अभी तक नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, I hope that everyone has understood anything, everything, sorry, not anything, it is everything. So we will continue with our the last part, that is the contract of agency. I'll just read the 2-3 lines from the slide, and then we will discuss about what is contract of agency. So contract, an agent is a person employed to do any act for another or to represent another in dealings with the third person. The person for whom such act is done or who is represented is called as principal. So three terms we will be discussing in this final part of our unit 1. These in contract of agency, these three terms will be agency, agent, and principal. Now, agency is the business, agent is the person who is representing the owner of that business or the person who has appointed him to do work for that particular business. Principal here is the person who appoints the agent, right? So an agent is a person employed to do any act for another. तो एजेंट कौन अपॉइंट करेगा? प्रिंसिपल. तो जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट करता है, किसके लिए? अपने बिजनेस का काम करने के लिए, अपनी एजेंसी का काम करने के लिए. सो जो अपॉइंट करता है दैट पर्सन इज प्रिंसिपल और ओनर. जो व्यक्ति काम कर रहा है उस बिजनेस का, उस एजेंसी का, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज एजेंट. तो एजेंट कौन? जो व्यक्ति अपने प्रिंसिपल को, अपने ओनर को रिप्रेजेंट करता है. कहां पर रिप्रेजेंट करता है? जब वो थर्ड पार्टी के साथ कोई डील करता है. किसके बिहाफ पे? दूसरे के बिहाफ पे, मतलब अपने ओनर या अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे. तो दैट पर्सन इज कॉल्ड एज एजेंट and that is called as contract of agency. So contract of agency in simple words means that when the agent enters into a contract with a third party on behalf of his principal, that contract is called as contract of agency. Contract of agency क्या है? जब अपॉइंट किया हुआ व्यक्ति किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है थर्ड पार्टी के साथ. किसके लिए? अपने लिए नहीं, अपने ओनर या अपने प्रिंसिपल के लिए. दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, राइट? द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एजेंसी. Sir, example. Agency is contract of agency का no. example. No, हाँ means as an example कोई lawyer या मतलब कौन हो सकता है ऐसे as an agent? अच्छा, अभी देखिए, अभी एजेंट और एजेंसी का या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का इजीएस्ट एग्जांपल. अब प्रिंसिपल वो व्यक्ति जो अपॉइंट कर रहा है किसी को, किसी को किसके लिए अपॉइंट कर रहा है? अपना काम कराने के लिए अपॉइंट कर रहा है. अब मिस्टर ए है, मिस्टर ए के 4 प्लॉट्स हैं मुंबई में. मिस्टर ए रहते हैं पूना में. अब मिस्टर ए को जो मुंबई के 4 प्लॉट्स हैं वो बेचने. मिस्टर ए के पास टाइम नहीं है कि पुणे
से मुंबई जाके वो 4 प्लॉट्स बेचें। अब मिस्टर ए क्या करते हैं कि वो मिस्टर बी को अपॉइंट करते हैं, उनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अगर आप मेरे ये 4 प्लॉट्स बेच देंगे तो मैं आपको इतना कमीशन दूंगा, इतना कमीशन दूंगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा इन दोनों के बीच में, मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में, दैट विल बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अब यहां पर प्रिंसिपल कौन है? मिस्टर ए हु ओन्स 4 प्लॉट्स इन मुंबई and who wants to sell these 4 plots which are there in Mumbai. But because he is busy, he is unable to travel Mumbai and sell those plots. तो वो खुद, उनके पास टाइम नहीं है मिस्टर ए के पास वो मुंबई जाके वो प्लॉट बेच सकें, तो वो क्या करते हैं, वो हायर करते हैं, वो अपॉइंट करते हैं मिस्टर बी को जो मुंबई के ही है कि अगर आप मेरे ये 4 प्लॉट बेच देंगे तो मैं आपको पर प्लॉट इतना कमीशन दूंगा, जो भी होता है डील का, 1%, 2%, 3%, जो भी है दोनों के बीच में। तो दिस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मिस्टर ए एंड मिस्टर बी विल कॉल्ड एज, इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। यहां पर 2 लोग हैं, मिस्टर ए हु इज अपॉइंटिंग मिस्टर बी विल बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल, Mr. B, who is appointed by Mr. A and who will be working on the instructions of Mr. A. तो Mr. B इंडिपेंडेंट काम नहीं करेंगे, मिस्टर बी क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, किसके? मिस्टर ए के। जैसा मिस्टर ए बोलेंगे मुझे ये प्लॉट इतने लाख रुपए में बेचना है, मुझे पैसा इस स्वरूप कैश में चाहिए, डीडी में चाहिए, चेक में चाहिए, ऑनलाइन ट्रांसफर करना है, इतने दिन में पूरा पैसा आना चाहिए, ये सारे इंस्ट्रक्शन कौन देगा? ये मिस्टर ए मिस्टर बी को दे, और इसी इंस्ट्रक्शंस के अनुसार मिस्टर बी फॉलो करते हुए वो काम कर रहे हैं। तो यहां पर मिस्टर बी इज एजेंट फॉर मिस्टर ए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में प्रिंसिपल कौन है? जिसने अपॉइंट किया। अपॉइंट किसने किया? ए ने। ए कौन है? वो मुंबई का एक, पुणे का एक पार्टी है जिसके पास 4 प्लॉट्स हैं मुंबई में, जिसे वो बेचना है। तो उसने क्या किया, खुद ना जाते हुए मुंबई दूसरे को, मिस्टर बी को अपॉइंट किया और मिस्टर बी को कहा कि मुझे ये कंडीशन में ये 4 प्लॉट्स बेचने हैं, अगर आप बेचते हैं तो आई एम रेडी टू पे यू दिस मच ऑफ इंटरेस्ट, दिस मच ऑफ कमीशन फॉर दैट। So that will be called as contract of agency. Here A is principal, A is owner, and B, who is appointed by A, will be called as his agent. तो यहाँ पर A को जाने की जरूरत नहीं है B के पास, सॉरी मुंबई, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, तो B ये प्लॉट थर्ड पार्टी को बेच सकता है, वहां से सारा पैसा लेके A को वो दे सकता है। पैसा ए को मिलने के बाद जो भी कमीशन तय हुआ था वो ए बी को दे देगा, और अगर ये सारा डील खत्म हो गया तो दैट विल बी द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। किसके लिए अपॉइंट किया प्रिंसिपल ने बी को? प्लॉट बेचने के लिए। प्लॉट बिक गए, पैसा आ गया, कमीशन सेटल हो गया, दैट इज द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। सो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। समझ गए आप? यस सर। हाँ, वेरी गुड। सो ठीक है, तो वी विल स्टॉप हेयर, वी विल कंटिन्यू दिस essential element from the essential elements of agency tomorrow. We will be meeting in the morning session tomorrow at 8:30 in the morning. We will be having our lecture of legal aspects of business. ठीक है, तो कल शाम की जगह कल मॉर्निंग में लेक्चर होने वाला है, तो प्लीज ध्यान रखिए, और 8:30 बजे हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू, गुड नाइट। ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू, गुड नाइट।